اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کی گردن دبایا. پاکستان ایسے بنا ہے. آج کے نوجوانوں کو میرا پیغام ہے, 14 اگست والے دن نماز نہیں چھوڑنی آپ نے. 14 اگست والے دن آپ نے قرآن نہیں چھوڑنا. 14 اگست والے دن ان شہداء کو خراج تحسین پیش کریں گے. یاد رکھنا, ان کے لیے دعائیں کرنی ہم نے. 14 اگست کے دن اگر ہو سکتا ہے, تمام مسلمانوں کو پیغام ہے, اگر ہو سکتا ہے تو قرآن خوانی کرائی جائے. ہو سکتا ہے تو گھر میں آپ اپنے بیوی بچوں کو بٹھا کر 14 اگست والے دن ان کو کہیں آج قرآن پڑھیں, اور ہم دعا مانگ کے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, جنہوں نے ہمیں پاکستان بنا کر دیا ہے, اور بنا کر نہیں بچا کر دیا ہے. انشاءاللہ اگلے جمعے تفصیل کے ساتھ پاکستان بننے کے حوالے سے, تاریخ کے حوالے سے انشاءاللہ اگلے جمعے وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے کہ پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا اور بنا کیوں تھا, پاکستان کیوں بنا تھا, پاکستان کی بنیاد کیا تھی. آپ سب نے ایک نعرہ سنا ہے, اس کے بعد بات ختم, کیونکہ پاکستان جو ہے پاکستان کلمے کی بنیاد پر بنا تھا. تم اپنا مقصد بھول کے ہوئے ہوئے. تمہارا مقصد کیا تھا؟ ہمارا مقصد نظام مصطفیٰ تھا. آج بھی کافروں کو کسی چیز سے تکلیف نہیں ہوتی. آج تکلیف ہوتی ہے تو نظام مصطفیٰ سے تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ محبوب کا نظام کیوں ہے پاکستان میں, نظام نہیں آنے دیتے, اس لیے ان کو تکلیف ہوتی ہے. آپ سب نعرہ سنائیں, خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان کو. ہم کہتے ہیں ہم تمہاری قربانی بھولے نہیں, ہم احسان فرموش نہیں ہیں, ہم امانت میں خیانت کرنے والے نہیں ہیں. آپ کی قربانیاں ہمیں یاد ہیں, ہماری ماں بہنوں کی قربانیاں ہمیں یاد ہیں, ان نوجوانوں اور 10,000 علماء کی قربانیاں ہمیں یاد ہیں, جنہوں نے اپنے اللہ دے کر پاکستان بنایا تھا. سب نے اپنے ہاتھ اٹھا کر یہ نعرہ لگانا ہے, میں نے کہنا پاکستان کا مطلب کیا, آپ نے کہنا لا الہ الا اللہ. یاد کرانا ہے, آپ نے یاد کرنا ہے, اور بچوں کو یاد کرانا ہے. 14 اگست والے دن خاص طور یہ نعرہ سنانا ہے ان کو, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. حکومت کیا ہوگا, محمد رسول اللہ نے کہا ہے. نظام حکومت کیا ہوگا, محمد رسول اللہ. حکومت کیا ہوگا, محمد رسول اللہ. حکومت کیا ہوگا, محمد رسول اللہ. مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. سب کیا ہوگا, ہمیں جہاں سے بھی ہے پیارا نشان ختم نبوت کا. ہمیں جہاں سے بھی ہے پیارا نشان ختم نبوت کا. ہمیں جہاں سے بھی ہے پیارا نشان ختم نبوت کا. اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا. اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا. ہے جتنے بھی نبی دیگر نبوت ان کی بکری تھی. ہے جتنے بھی نبی دیگر نبوت کی بکری تھی. مگر حشر تک سارا زمان ختم نبوت کا.
اکبر کا کرو اپنے لہو سے بھی دیہات میں نبوت کا کرو اپنے لہو سے بھی دیہات میں نبوت کا مٹا دو بازو سے کفر کا دلوں کا مٹا دو بازو سے کفر کا دلوں کا یمامہ سے اٹھا لو جماعت میں نبوت کا یمامہ سے اٹھا لو جماعت میں نبوت کا میرے عرب شریف سے چلنے کا کوئی صاحب جماعت نہیں ہو سکتا بلکہ سارے زمانے سے شاید آزاد کہ رسول خیال نہیں ہو سکتا اور آسانی اس کے ناطے اندر کوئی مہیدہ لال نہیں ہو سکتا میرے آقا دی شان شریف پاسے کوئی دوجا بلال نہیں ہو سکتا ہم آزاد کیوں تھے پاکستان بنانے کا مقصد کیا ہے پاکستان کیوں بنایا گیا پاکستان دو قومی نظریہ کی بنیاد پر بنایا گیا جڑا مقصد ہے پاکستان بنانے کا جو مقصد تھا ہم وہ بھول گئے کہ پاکستان کیوں بنا اور اس پاکستان بنانے کی بنیاد کیا تھی پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا کیا پاکستان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے اور آج لوگ کہتے ہیں پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر نہیں بنا بلکہ 28واں پارہ ہے سورۃ التغابن اس کے اندر آیات ہے جس آیات کا مفہوم ہے اللہ نے سب کو اللہ نے پیدا فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو جو پیدا فرمایا وہ کفار ہیں اور کچھ مومن ہیں دونوں کا ذکر ایک آیات میں واضح طور پر آ گیا یعنی جو ہمارے بزرگان دین جنہوں نے محنت کر کے ہمیں پاکستان بنا کر دیا ہے انہوں نے ایسے نہیں دیا
انہوں نے قرآن بھی پڑھا تھا، محبوب کا فرمان بھی پڑھا تھا۔ قرآن پاک کی آیات کا موضوع ہے، اللہ نے فرمایا میں نے کچھ کافر اور کچھ مومن، دو گروہوں کا ذکر فرمایا، ایک کافر ہے اور ایک مومن ہے۔ کافر جو ہے نا، یہ نہ کہنا پاکستان کے کافر اور ہیں، ہندوستان کے کافر اور ہیں، فلسطین کے کافر اور ہیں، فرمایا جتنے بھی ملک ہیں، کشمیر کے کافر اور ہیں، یہ سارے کے سارے ایک ہیں۔ یہ ایک گروہ، دوسرا گروہ مسلمان، چاہے وہ مسلمان انڈیا کے رہنے والے ہوں، چاہے وہ مسلمان فلسطین کے رہنے والے ہوں، چاہے وہ مسلمان کشمیر کے رہنے والے ہوں، چاہے وہ مسلمان پاکستان کے رہنے والے ہوں، مسلمان ایک جماعت ہے، ایک ملت ہے، اور کافر ایک جماعت اور ایک ملت ہے۔ یہ دو ہے قومی نظریہ، ان کا نظریہ اور ہے، مومنوں کا نظریہ اور ہے، کافروں کا نظریہ اور ہے۔ مومن جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کافر جو ہے وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ مومن گائے کا دودھ پیتے ہیں، کافر جو ہے وہ گائے کو خدا مانتے ہیں۔ ہم جو ہے اللہ کو مانتے ہیں، وہ بتوں کو مانتے ہیں۔ ہمارا اور ان کا اختلاف ہے، کیونکہ ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں، وہ کئی خداؤں کو ماننے والے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ کیا پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کہ تم نے نماز پڑھنی ہے؟ پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کہ تم نے قرآن پڑھنا ہے۔ نماز ہندوستان کے اندر بھی ادا کی جا رہی ہے، چاہے وہ تکلیف پہنچاتے ہیں، نمازیں آج بھی ہو رہی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت آج بھی ہو رہی ہے۔ انہوں نے ہمیں قرآن پڑھنے سے منع نہیں کیا، انہوں نے ہمیں نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا، انہوں نے ہمیں مسجد بنانے سے منع نہیں کیا، انہوں نے ہمیں خیرات صدقات کرنے سے منع نہیں کیا۔ سب سے جو بڑی تکلیف تھی، پریشانی تھی، وہ یہ تھی کہ پاکستان اس لیے بنایا گیا، 10,000 عورتوں نے اپنی عزت نیلام کی تو پھر یہ پاکستان بنا۔ 10,000 عورتوں نے، اور کچھ عرصہ پہلے آج بھی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان راستے کے اندر جو کنواں آتا ہے، آج بھی جب ان کے اندر دیکھا گیا تو مسلمان عورتوں کی، مردوں کی ہڈیاں ملی ہیں۔ یعنی معلوم ہوا سکھوں نے مسلمانوں کو مار کر جو کنویں بہنے والے تھے، ان کو کنووں کو مسلمانوں کی لاشوں سے بھر دیا تھا۔ یہ پاکستان ایسے نہیں بنا۔ اس پاکستان کے اندر ہمارے علماء، ہمارے صوفیاء، ہمارے اولیاء کرام کا لہو ہے اس کی بنیاد میں۔ پاکستان کس بنیاد میں بنا؟ آج ہر بندہ مقصد بول کے رہا ہے۔ پاکستان بنا تھا کلمے کی بنیاد پر۔ پاکستان کسی نے کیا خوب کہا تھا، اولیاء کا ہے فیضان، پاکستان یعنی کہ اولیاء کا فیضان ہے جو آج ہمارے ہاتھ میں پاکستان ہے۔ اور دوسری بات، اتنی ساری بچیاں، ہماری مائیں، ہماری بہنوں نے، نوجوانوں نے اپنا لہو اس زمین کو، اس چمنستان کے جو چمن ہے، بوٹا ہے، اس کو دیا تو اللہ نے ہمیں پاکستان عطا کیا۔ یہ پاکستان اتنی محنت سے بنا، اتنی محنت سے بنا۔ فرمایا جب علامہ اقبال سوئے ہوئے تھے، آنکھ بند تھی، آنکھ لگی ہے، آنکھ بند ہے، فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام نے دیدار کرایا۔ محبوب نے فرمایا اے اقبال، جسے مصور پاکستان بھی کہا جاتا ہے، جو پاکستان کی تصویر ہے، آج یونیورسٹی کالجوں میں علامہ اقبال کی جو تعلیم تھی اسے بھلا دیا گیا، علامہ اقبال کے نام کی جو چھٹی تھی اسے بند کر دیا گیا۔ جنہوں نے محنت کی ان کا نام بھی نہیں لیے دینے، ہمیں نام لینے نہیں دیتے ان کا۔ مصور پاکستان جنہوں نے پاکستان بنانے میں اپنا کردار ادا کیا، اور پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، غور کرنا، انہوں نے محنت کی پاکستان بنانے میں۔ پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے پاکستان بنانے میں محنت کی۔ اور یاد رکھنا
मेरा किसी से इख्तलाफ नहीं है और मैं किसी पर तनकीद नहीं कर रहा। अगर किसी को परेशानी हो तो किताब मेरे हाथ में भी मौजूद है, मोबाइल में भी मौजूद है। ये किताब जो है ना मेरी नहीं है, ना मेरे उलमा की है, मेरे उलमा की किताब नहीं है। मैंने उन उलमा की किताब पढ़ी है जिन्होंने कहा था हम पाकिस्तान की टेक ही नहीं बनने देते, वो भी उलमा थे। आज हम अगर बात करते हैं, लोग कहते हैं आप इख्तलाफी मसला बयान करते हैं। मैंने कहा हम कोई इख्तलाफी मसला बयान नहीं करते, हम हकीकत से पर्दा उठाते हैं, हकीकत आपके सामने बयान करते हैं। उन लोगों की आज मैं जब मुताला कर रहा था, हिस्ट्री पढ़ रहा था, उन उलमा की जिन्होंने कहा जिहाद का बयान कर रहे थे। एक बंदा मजमे से खड़ा हुआ, उसने कहा आप काफिरों के खिलाफ जंग का हुक्म क्यों नहीं देते? उन्होंने कहा इनके साथ जंग लड़ना जायज नहीं है। अगर कोई कहे ज़बानी बात नहीं है, मेरे पास हवाला मौजूद है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी और हम जो मुसलमान है ना, हम मुसलमान काफिरों के साथ नहीं लड़ सकते, और उन्होंने कहा हम लड़ने का हुक्म भी नहीं देंगे। ये गलत काम है, आप काफिरों के साथ जंग करें, उनके साथ लड़ें। आज उठाए ना उनकी तारीफ, बड़े बड़े जो उलमा है ना, उन्होंने कहा था उनको वहां से पैसे मिलते थे, किताबों में लिखा है उनके उलमा ने, मेरे उलमा ने नहीं। उनके उलमा ने अपनी किताबों में लिखा है उनको महीने के 6,000 या 600 रुपये दिए जाते थे, जिनका एक नाम हकीकत, क्योंकि हमारा हक बनता है हम हकीकत बयान करें। आज जो लोग कहते हैं हम भी पाकिस्तानी हैं, अगर तुम पाकिस्तानी होते तो पाकिस्तान में इंतशार क्यों फैलाते, पाकिस्तान का नुकसान क्यों होता, हमारी माशरत तबाह क्यों होती? ये इसलिए हो रही है। पर मैं मौलाना अशरफ अली थानवी, उनके उलमा, इनको 6,000 या 600 रुपया हर महीने का मिलता था, काफिर दे रहे थे, इन्होंने नहीं कहा। और आज भी जो पाकिस्तान में मौजूद है ना, जो कहते हैं हम भी पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के बड़े मुहाफिज हैं, खैर खां हैं, कोई खैर खां नहीं है ये पाकिस्तान के। इनके बाप दादा की हिस्ट्री पढ़ के देखो, तारीख उठा हुआ है, तारीख गवाह है। पर मैं इन्होंने कहा था हम पाकिस्तान बनने नहीं देंगे। जब पाकिस्तान बनेगा तो निज़ाम हुकूमत मुस्तफा की आएगी, जब निज़ाम हुकूमत मुस्तफा की होगी सबसे पहले हम में नमक किया जाएगा। इनके बड़े बड़े उलमा ने एक एक का आज मैं नाम लूं, पर मैं आप कहेंगे ऐसे नहीं। मैंने मुताला किया, बड़ी किताब जब, पर मैं जो पाकिस्तान के गद्दार थे, पाकिस्तान के दुश्मन थे, पर मैं कोई और नहीं थे, कलमा पढ़ने वाले मुसलमान उलमा कहलाने वाले थे। जब आप कहते हैं कि हर उलमा का बयान सुनना चाहिए, हर उलमा के पीछे नमाज भी पढ़नी चाहिए, वो भी कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, आप मना क्यों करते हैं? मैंने कहा जो नबी का दुश्मन हो उनके पीछे भी नमाज होती है, जो पाकिस्तान का दुश्मन हो उनके पीछे भी नमाज होती है, जो अवाम का दुश्मन हो उनके पीछे भी नमाज होती है। कभी नहीं होती। मैं अपनी तरफ से नहीं आऊँ, महबूब का फरमान पेश करता हूँ। मदीने वाले महबूब मस्जिद नबी है, मेरे नबी जलवागर है, सहाबा मौजूद है, मजलिस नबवी लगी है, मस्जिद नबवी लगी है, मेरे नबी जलवागर है, सहाबा मौजूद है। मेरे नबी ने कहा कयामत का दिन होगा, गौर करना, कयामत का दिन होगा। मेरे नबी ने कहा कयामत का दिन होगा, लोग जमा होंगे, पर मैं एक बंदे को मेरा रब फरमाएगा जा जन्नत में चला जा। आयता ओ पता ना जनाब नू सारी कीतियां दा जो असी कीता है, जेड़े जेड़े असी गुनाह कीते ने सारा पता है सब। असा जो कुछ है हमें पता है हम क्या है अंदर से, हम कितने बड़े मुजरिम हैं, हम खुद अपने आप को तो जानते हैं। फरमाया जब अल्लाह ने कहा जन्नत में चला जा, महबूब सहाबा को बयान फरमा रहे हैं, सुना रहे हैं। फरमाया अल्लाह ने कहा जन्नत में चला जा, बंदे ने हाथ जोड़े, सर झुकाया, अर्ज की या रब्बुल आलमीन मेहरबानी फरमा, मेरी कोई ऐसी नेकी तो नहीं थी जिस वजह से तू मुझे जन्नत में भेज रहा, नेकी तो है नहीं मेरी ऐसी, मैं तो सारी जिंदगी नाफरमानी करता रहा, आज तू मुझे जन्नत दे रहा है, इतना बड़ा करम करीम रब क्यों किया? रब से बंदा कह रहा है या अल्लाह आज मुझे जन्नत क्यों दे रहा है? मैं तो गुनहगार था, बदकार था, सियाकार था, इतना बड़ा मुजरिम था, आज तू मुझे जन्नत दे रहा है। रब ने कहा है मेरे बंदे तेरी एक ऐसी नेकी थी जिस वजह से आज मैं तुझे जन्नत दे रहा हूँ।
फरमाया नेकी कौन सी थी? अब गौर करना नेकी पर, अभी मैंने सिर्फ इंसान का नाम भी नहीं लिया। फरमाया नेकी कौन सी थी? हर बंदा गौर करे, हर बंदा अपने घर की सफाई रखे, सिर्फ घर की नहीं, अपनी गली की भी सफाई रखो। घर के बाहर जो गंद रखा जाता है ना, ये याद रखना, ये मुआशरे की तबाही है। हम क्या अपना किरदार अदा कर रहे हैं? मैंने एक बाबे का वाकया पढ़ा, बाबा जा रहा था शहर में जा रहा था, वो शहर भी उनका नहीं था, मोहल्ला भी उनका नहीं था, बस्ती भी उनकी नहीं थी। जा रहा था, जाते जाते देखा एक बंदा गाड़ी पे जा रहा था, उसने कुछ खाया और सड़क पर फेंक दिया। तो बाबे ने उसकी गाड़ी रोकी और उसे कहा रुक जा, ये जो गंद तूने सड़क पर डाला है इसे उठा। हम नहीं चाहते कि हमारे पाकिस्तान में गंद हो, हम भी यही चाहते हैं जितने गंदे लोग हैं निकल जाए पाकिस्तान से। हमने पाकिस्तान बनाया था, हम ही पाकिस्तान बचाएंगे। हमने ही अंग्रेज यहाँ से इंग्लिस्तान भगाया था, हमने पाकिस्तान बनाया था, हम ही पाकिस्तान बचाएंगे। आगे क्या इरशाद फरमाया? महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया रात का वक्त था, मेरे बंदे रात का वक्त था, रात का टाइम था, लोग सो रहे थे, अपने बिस्तर में आराम कर रहे थे। फिर मैं रात का वक्त है, तू अपने घर से निकलता है, गली में जा रहा था, जाते जाते गली में एक रोड़ा पड़ा था, तूने रोड़ा उठाया, उसे साइड में डाल दिया, रास्ता साफ किया, उस रोड़े की बरकत से हटाने की वजह से मैंने तुझे जन्नत दी। क्या किया था? किसी मुसलमान की नहीं, नमाज नहीं पढ़ी थी, सारी रात तहज्जुद नहीं पढ़ता रहा, सारी रात वो जिक्र नहीं करता रहा, सारी रात कुरान पाक की तिलावत नहीं कर रहा था, अल्लाह ने जन्नत दी। क्या किया था? गली से एक रोड़ा हटाया। यार जो बंदा मुसलमान के लिए रास्ता साफ करे उसे तो मेरा रब जन्नत देता है, उसे तो जन्नत दे जो मुसलमान का रास्ता साफ करे। और जितने आज रास्ता बंद किया हुआ है वो कहाँ जाएगा? जितने आज मुसलमानों का रास्ता बंद, मस्जिद का रास्ता बंद, मुसलमानों को तकलीफ ऐसा पहुंचाने में लगा है, वो कौन सा मुंह लेकर रब की बारगाह में जाएगा? महबूब करीम ने फरमाया उसने गली से एक रोड़ा हटाया, एक रोड़े हटाने की वजह से अल्लाह ने कहा, बंदे ने कहा या अल्लाह मैंने इसलिए हटाया था, कोई बीमार, कोई बूढ़ा अगर रात को यहाँ से गुजरने लगे उसे ठोकर न लगे, तकलीफ ना हो, इसलिए मैंने रोड़ा हटाया। रब ने कहा तू मेरे बंदों का इतना ख्याल रखता है, मैं रब होकर कितना ख्याल रखता? तू बंदा होकर बंदों का ख्याल करे कि बंदे को धक्का ना लगे, मैं रब होकर करीम नहीं हूँ? इसलिए कहा आज अपने घर के बाहर अपनी गलियां साफ रखो। वो नौजवान पढ़े लिखे नहीं है जो नौजवान ये कहें गली के बाहर आकर खड़े हो जाए, खड़े होने के बाद ये कहें देखो जी इस गली के बाहर कितना गंद पड़ा है। पढ़े लिखे वो हैं जो कस्सी उठाए और तगारी उठाए, गलियों को साफ करे, उन्हें पढ़ा लिखा कहा जाता है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बैक वाले ये काम कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने जब वहां पर धरना दिया बैठे तो उन्होंने 10 मिनट के अंदर सारा का सारा पूरा मेरा जहां धरना दिया सारी जगह साफ कर, एक टुकड़ा भी गंद का नहीं रहने दिया। तो मैं क्यों? पाकिस्तान हमारा है, हम इसे गंदा नहीं होने देंगे। जो मुसलमान पाकिस्तान की गंदगी बर्दाश्त नहीं करता वो मुसलमान पाकिस्तान में गंदे लोगों को कैसे बर्दाश्त करेंगे? और महबूब का दूसरा फरमान सुनो, पाकिस्तान 14 अगस्त आने वाला है। 14 अगस्त इसलिए नहीं बना कि आप अपनी लड़कियों को बाहर ले जाएं, रोड पे खड़ा करें, उनके सरों से दुपट्टा उतारा जाए, नौजवान अपनी मोटरसाइकिलों के सलेंसर निकाले और नौजवानों के हाथ में नगाड़े दिए जाए। पाकिस्तान नगाड़े बजाने के लिए नहीं बना, पाकिस्तान बेहयाई, उरियानी, फरहाशी फैलाने के लिए नहीं बना, पाकिस्तान तो मोहम्मद अरबी के दीन के लिए बना। पर मैं ये नहीं कि नौजवान निकले हम आजाद हो गए, आजाद इसलिए हुए थे हम कुफ्र से आजाद होकर नबी की शरीयत में दाखिल हो गए थे। हम नबी की शरीयत से आजाद नहीं है। आप कहें हम शरीयत से आजाद हो गए, बेहयाई यानी हम शरीयत से और जो हया था हया से आजाद हो गए, हम नमाज से आजाद, कुरान से आजाद हो गए। नहीं ऐसा किस नहीं हुआ। फिर मैं हम कुफ्र से आजाद हुए थे, नबी की शरीयत में आ गए। दूसरा फरमान सुने मेरे मुस्तफा का। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने इलाकों के अंदर आज दरख्त काटे जाते हैं। याद रखना, याद रखना,
महबूब करीम ने फरमाया दरख्त लगाओ। जिसने एक दरख्त लगाया उस दरख्त से मुसलमान ने फायदा उठाया, उस दरख्त से किसी जानवर ने फायदा उठाया, नफा उठाया। आपने बुजुर्गों के जुमले कमाल है। बुजुर्ग हमारे जो चले गए वो क्या गए थे? फरमाया बेटा लगाता कोई और है, उसकी छांव में कोई और बैठ रहा है। लगाने वाले लगा कर चले गए, आज लोग नफा उठा रहे हैं। मेरे मुस्तफा ने फरमाया जो दरख्त लगाए वो चला जाए, जितनी देर तक फरमाया मुसलमान इंसान उनसे नफा उठाए, जानवर उनसे नफा उठाते रहेंगे, मेरा रब उनके नाम अमाल में लेके लिखता रहेगा। तीसरी बात याद रखना, आज मुसलमान क्या पहरा देता है? रात के वक्त क्या पहरा देता है? हमारे घर में हमारी इज्जतें महफूज नहीं है। दूर की बात तो दूर की बात है, हमारे घरों में हमारे रिश्तेदारों से हमारी इज्जतें महफूज नहीं है। एक दिन ऐसा आया, सहाबा रात का वक्त है, सो रहे हैं। 14 अगस्त आने वाला है, मैं 14 अगस्त पे बयान कर रहा हूँ। याद रखना 14 अगस्त किस तरह मनाया जाता है, पाकिस्तान बना क्यों था, अभी इसका मकसद बयान करना है। और मैं रात का वक्त है, साहबा सो रहे हैं, मेरे नबी आराम फरमा रहे हैं। फरमाया रात का वक्त है, एक कोने से रोने की आवाज आई। किसकी आवाज आई? रोने की आवाज आई। सारे उठे और दौड़े उस तरफ। साहबा खड़े हुए, फिर मैं जाओ आ जाओ, जाकर देखते हैं क्या मसला है। आज तो रात का वक्त हो, मुसलमान रो रहा हो, दूसरा मुसलमान का घर दीवार करीब है, वो रोता रहे, वो उठकर पूछना भी गवारा नहीं करता। ये है हम मुसलमान, ये है हम इंसान। मैं कहता हूँ ये तो मुसलमान की हमसाये की बात कर रहा हूँ। आज बाप चीख रहा होता है, रात को चिल्ला रहा होता है, बीमारी से रो रहा होता है, बेटा कमरा बंद करके सो रहा होता है। ये कैसा बेटा है? पर मैं अगर माँ रो रही है, कयामत की निशानियों में से निशानी है। याद रखना बेटी कितना प्यार करती है माँ से, कितना प्यार करती है बेटी बाप से। अरे बाप से बेटा इतना प्यार नहीं करता जितना बेटी प्यार करते हैं, खुदा की कसम। फरमाया महबूब का फरमान है, कयामत की निशानियों में से निशानी है, ऐसा वक्त ऐसा जमाना आएगा बेटियां नाफरमान हो जाएंगी। आज हो रहा है, नहीं हो रहा? कयामत की निशानी ज़ाहिर हो गई है। महबूब ने 1400 साल पहले बताया बेटियां कितनी रहमदिल होती हैं, कितना प्यार करती हैं माँ से। आज बेटियां नाफरमान हो गई माँ बाप की। फरमाया उनके अंदर ये माँ बाप का अदब खत्म हो गया। फरमाया महबूब करीम ने, फरमाया रात का वक्त है, रोने की आवाज आई, अभी लोग उठे हैं, जाकर खबर लेते हैं। आज कोई चीखता रहे, याद रखना यह भी बड़ा कमाल फरमान है। अपने दिल के जमीर के अंदर फरमाया झांक कर देखें, अपने दिल की अदालत में खड़े हो जाए, इनसे पूछें। फरमाया कि हम मुसलमान हैं ना, काम भी सारे मुसलमानों वाले हैं। देखिए आज इतने मसाइल खड़े हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? इसकी वजह कोई और नहीं, हम हैं। किसी को क्या बुरा कहें, हम खुद इतने बुरे हैं। फरमाया दूसरी बात किसी ने क्या खूब बयान की, फरमाया रात का वक्त हो, हम साया भूखा सो जाए और दूसरा बंदा सारी रात तहज्जुद पढ़ता रहे, कुरान पढ़ता रहे, जिक्र करता रहे, रब कहेगा ये इबादत चाह कर इसके मुंह पे मारो, ये जिक्र उठाओ इसके मुंह पे मारो, कुरान की तिलावत उठाओ इसके मुंह पे मारो। फरमाया रात का वक्त था, फरमाया रब कहेगा, कौन? रब कहेगा रात का वक्त था, मैं भूखा सो गया था, मुझे खाना खिलाया था। बंदा कहेगा या अल्लाह तू तो खाने पीने से भाग है। रब कहेगा अगर तू वहां आता मेरे बंदे के पास, मुझे भी वहां मौजूद पाता। रब कहेगा मैं प्यासा था, रब कहेगा। आज तू कहता है बंदा है, मैं क्या करूं, भूखा सो गया तो मैं क्या करूं, मरता है भूख से मर जाए, चाहे मेरा भाई भी क्यों ना हो, रिश्तेदार भी क्यों ना हो, हमसाया भी क्यों ना हो, इंसानियत भी खत्म हो गई, मुसलमानी भी खत्म हो गई। आपने कहा अगर कोई प्यासा रह गया, रब कहेगा मैं प्यासा था, क्या मुझे पानी पिलाया था? रब कहेगा मेरे पास कपड़े नहीं थे, क्या मुझे कपड़े दिए थे? बंदा कहेगा या अल्लाह तू तो कपड़ों से पाक था, पीने से पाक था, खाने से पाक था। रब कहेगा जो साथ में था वो बंदा नहीं था, मेरा बंदा था, मेरा बंदा था, जिसके पास लिबास नहीं था, तेरे पास इतने पैसे थे, माल था, दौलत था, कभी उसको कपड़े दिए थे? रब कहेगा वो प्यासा था। आज हम कहते हैं क्या बड़ा मुआशरे में हम काम कर रहे हैं,
मेरे नबी करीम रात का वक्त है, साहबा उठते दौड़ते हुए गए, क्या देखते हैं, फरमाया उस तरफ जा रहे थे, मेरे नबी वहां से आ रहे थे। जिसने एक रात पाकिस्तान की सरहद पर पहरा दिया, एक रात, एक साल नहीं, एक महीने की बात नहीं, पूरी जिंदगी की नहीं, एक रात जिसने पहरा दिया, उसका ये हाल है। मेरे महबूब ने फरमाया रात का इबादत करने वाला इबादत करे, कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़ता रहे, सदका खैरात करने वाला सदका खैरात करता रहे, और जो बंदा एक रात पहरा देगा अल्लाह उसको इसके बराबर सवाब अता फरमाएगा। मेरे नबी ने कहा परेशान ना हो, मैं वहां से होकर आ रहा हूँ, कोई मसला नहीं, यहाँ पर आपसे सोचे। मालूम हुआ मेरे नबी को वतन से प्यार था। और क्या कहते हैं आप समझते क्या है, ये वतन है क्या पाकिस्तान? ये पाकिस्तान हमारी माँ है। ये पाकिस्तान ऐसे नहीं बना, इनको खून मेरे नबी और अली ने दिया है। ये पाकिस्तान आम नहीं है, मेरे महबूब का फरमान है, हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान है। आज जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनके दिल में पाकिस्तान की मोहब्बत है, जो पाकिस्तान की माईशत तबाह कर रहे हैं उनके दिल में पाकिस्तान की मोहब्बत है, जो लड़ाई कराना चाहते हैं मुसलमानों में पाकिस्तान की मोहब्बत है, जो इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं, आज लोग बिलों की वजह से मर रहे हैं, ये मोहब्बत है। मेरे नबी ने इतना भी गवारा नहीं किया। महबूब ने फरमाया एक काम कर जाओ, आज तुम में से कोई एक काम भी कर जाए। कौन सा काम है? मेरे नबी ने पहले बताया था। आज आप गौर करें इतनी बीमारियां क्यों, आखिरी बात खत्म कर रहा हूँ, आज आपके और मेरे अंदर इतनी बीमारियां क्यों लगी? ये बीमारियों की वजह क्या है? बड़ा कमाल नुक्ता दे रहा हूँ, दिल के कानों से सुनना। फरमाया ये आज इतनी बीमारियां क्यों हैं इंसान में, सबसे बड़ी वजह क्या है? आज हमारे पानी खराब है। ये पानी की बात मैं नहीं कर रहा, मेरे नबी ने 1400 साल पहले की। मेरे नबी ने फरमाया ये कुआं है पानी का, काफिर का मीठा पानी है। फरमाया जो इस कुएं को खरीद कर मुसलमानों के हवाले करेगा, यानी मुसलमानों को खूबसूरत सुथरा पानी, अच्छा पानी पेश करेगा, महबूब ने फरमाया ये मेरे पास है जन्नत की टिकट। आज कोई कहे नबी को इख्तियार नहीं है, नबी के पास जन्नत कैसे आ गई, नबी कैसे जन्नत दे सकते हैं? मैंने कहा बेहलोल बना है, रेत पर बैठा है, कह रहा है कोई जन्नत लेना, कोई जन्नत लेना चाहता है। किसी ने कहा तू तो गुलाम है, रेत के टीले पे बैठा है, तेरे पास जन्नत कहा? उसने कहा जिसने लेनी है ले जाए। फरमाते हैं मलका जुबैदा आई, उसने पैसे दिए, जन्नत में माल खरीदा, रात का वक्त है, जाकर सो गई। फिर मैं उसका घर वाला सो गया, आंख लगी, क्या देखता है? जन्नत के अंदर मकान है जिसके ऊपर लिखा है मलका जुबैदा। उसने कहा ये मेरी घरवाली का मकान है। ऐसे उठा जल्दी से मकान में दाखिल होने लगा, फरिश्ते ने यहाँ से पकड़कर उसने पीछे हटा दिया। पर मैं ये मकान तुम्हारी बीवी का नहीं है, तुम्हारी बीवी दुनिया में, जन्नत में किसी की बीवी नहीं है। पर मैं उसका महल है, ये जन्नत में उसका घर है। पर मैं ये तेरी बीवी जन्नत में जाएगी, तू नहीं जा सकता। मालूम हुआ ये तो गुलाम जन्नत दे रहे हैं, तो मदीने वाले महबूब की शान का। महबूब ने कहा मेरे हाथ में जन्नत की टिकट है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काफिर के पास जाते हैं, उनको कहते हैं यार ये कुआं दे दे। उसने कहा मैं कुआं नहीं दूंगा। 7,000 का कुआं था, उसने 40,000 मांगे। हजरत उस्मान गनी ने कहा ये ले 40 दिनार। उसने कहा आधा कुआं मेरा है, आधा तेरा है। महबूब ने 1400 साल पहले बताया, पर पानी खराब हो तो बीमारियां लग जाती है। आज भी अगर मुसलमान नौजवान पैसे वाले खड़े हो, एक एक बस्ती के अंदर एक एक पानी का फरमाया कुआं हो जाए, या पानी का एक मोटर लगा दी जाए जो साफ पानी मुसलमानों तक पहुंचे। फरमाया जो साफ पानी मुसलमानों तक पहुंचाएगा मेरे नबी उसे जन्नत अता फरमा देगा। हजरत उस्मान गनी ने कुआं खरीदा। उसने कहा उस्मान बड़ी तिजारत करते हो, आज घाटे वाला सौदा किया। उस्मान ने कहा घाटे वाला ने मुनाफे वाला सौदा किया। फिर मैं तू बेईमान है, काफिर है, तुझे क्या पता हम नबी के गुलाम है। तूने 40,000 मांगे थे, मैं तो 60,000 लेकर आया था, मैं तो 60,000 देने वाला था। अरे तूने 40 मांगे, ये ले 40 दिनार, और ये पानी जो है मुसलमानों तक पहुंचना चाहिए। फरमाते हैं फिर हुआ क्या? उस्मान गनी ने ऐलान किया जितने मुसलमान है किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। आज क्या है? आज क्या है? खुदा की कसम हम हर चीज का मुआयना करते हैं, जहाँ भी जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, आपसे भी हाथ जोड़ता हूँ, जितने लोग जो जो काम करने वाले हैं मेरी ये बात कान खोल के सुन लें। आप सब के आगे हाथ जोड़ता हूँ, जो जो काम करते हैं उसमें मिलावट न करें। आज होटल वाला क्या करता है, जैसी सब्जी आई उसमें कीड़े हैं, गंदगी है, जा
यार यहाँ के काफिरों को खिलाना है या मुसलमानों को खिलाना है? और नंबर 2, जो चीज बनाने वाले हैं पर मैं उसके अंदर गंदगी पड़ी होती है, कीड़े पड़े होते हैं, साफ किया, मुसलमानों को पेश किया। ये काफिर नहीं कर रहे, मैं काफिरों की बात नहीं कह रहा, ये मुसलमानों का हाल है। हम मुसलमान अपने मुसलमानों को, अगर यूं कहूं तो बात गलत ना होगी, हम मुसलमान खुद अपने हाथों से हराम खा रहे हैं, अपने हाथों से आप हराम खा रहे हैं और दूसरे मुसलमानों को हराम खिला रहे हैं। मेरे नबी ने कहा, हजरत उस्मान ने कुआं खरीदा और दे दिया। आज भी आप अपनी गली, अपना मोहल्ला साफ करना है और पाकिस्तान 14 अगस्त के हवाले से आपने नगारे नहीं बजाने, बेटों को पटाखे उठाकर नहीं देने। 14 अगस्त के हवाले से जब मक्का फतह हुआ, मेरे नबी 8 साल के बाद आ रहे थे, मेरे नबी ने ये नहीं कहा आज मक्का फतह हो गया, आज हम मुसलमान जो है ताकत में है। मेरे नबी उस दिन ऐसे करके नहीं आ रहे थे, मेरे नबी उस दिन ऐसे कर रहे थे। पर मैं जब अल्लाह कोई नेमत दे, आज पाकिस्तान मिला है, हम क्या करें, ऐसे हम पटाखे बजाना और नगारे बजाना शुरू कर दें, उस दिन नमाज छोड़ दें और बेहयाई आम हो जाए 14 अगस्त के दिन। 10,000 औरतों ने, इतने उलमा ने कुर्बानियां दी, क्या वो ये कहेंगे हमने इसलिए खून दिया था कि तुम पाकिस्तान में मईशत तबाह करते रहो, मुसलमानों की इज्जत बेमार करते रहो? पर मैं एक औरत का बेटा था, रो रहा था, सिख पार खड़े थे, उस्मान